Good morning, everyone. In the yesterday classes, we have done the expression for the excess pressure due to the curved surface of the liquid. You know that the surface of a liquid is not a straight generally. It's not a plane generally because of the surface tension. So the surface is curved. You know कि the free surface of a liquid are generally curved. That curves उसको हम बोलते हैं क्या? जैसे you can see the figure. I have made a figure. एक हमारा ये है figure 1. Figure ABC you can take. Figure A. This is figure B. This is the figure C. So in figure A you see I have taken a glass vessel. I have written here glass vessel which is filled with the water. Clear? Second figure में I have taken a glass vessel filled with the mercury. Here I have taken a silver vessel filled with the clean water. So first you see, in this case, the surface, this you are seeing a concave surface. मतलब curving is there. यहाँ पे भी कर्व है, but that curving is a convex. तो and this is plane. So this curving of the free surface of the liquid is known as the meniscus. उसको क्या बोलते हैं? Liquid meniscus. This word used. तो अब हम बात करते हैं कि on what factor this curving depends. कि वो curving आपकी कब plane होगी, कब आपकी concave होगी और कब आपकी कन्वेक्स होगी. तो यू सी दैट अगर हमने आपको बता दिया है कनकेव और सॉरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. यू नो दैट कोहेसिव फोर्स क्या होता है? अगर हियर इफ यू आर टॉकिंग कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिंगल मैटर, सिंगल सब्सटेंस. तो वाटर के बीच का जो फोर्सेस होता है उसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्सेस. और अगर वाटर और किसी और चीज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज द एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये जो कर्विंग होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस. अब आपका ये होगा केस 1 इफ एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव जो आपका फोर्स है इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. अगर ये केस है तो क्या होगा? देन जो लिक्विड होता है वो क्या करेगा? वेट द सॉलिड. लिक्विड क्या करेगा? उस सॉलिड को भिगोएगा, वेट करेगा. ठीक, वेट्स द सॉलिड एंड it forms which types of meniscus? Concave. ये देखिए we can see this figure. इसको बोलते हैं concave meniscus. इस टाइप का meniscus फॉर्म होगा concave meniscus. ये कब बनेगा? when adhesive force is greater than the cohesive force. Clear? And it is explained in the case A. Second अगर हम बात करें कि इसका अपोजिट, इफ एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, दिस फोर्स इज देयर कोहेसिव फोर्स, तो क्या होगा? देन लिक्विड डज नॉट वेट्स द सॉलिड. और इसमें शेप क्या होगा? शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी द कन्वेक्स मेनिस्कस विल फॉर्म हियर एंड कन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म. क्लियर? अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इन केस ऑफ ए मरकरी लिक्विड, मरकरी होनी चाहिए and the vessel should be the glass. So in case of mercury and glasses, the meniscus will be convex. In case of water and glass,
the meniscus will be the concave. अब एक केस और, when the concave, when adhesive force is equal to cohesive force, अगर ये केस है तो क्या होगा, the meniscus will be, the liquid surface will be the liquid surface will be plane. अब यहाँ पे आपका meniscus फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे कर्विंग नहीं होगी, the surface will be the plane. You can see the figure. और ये केसेस कब होता है, when we are talking about the silver vessel and clean water. अगर हम ऐसा रखें, सिल्वर वाटर को ले लें और क्लीन वाटर ले लें, सिल्वर वेसल ले लें और that is filled with the clean water, then the meniscus will not form and the liquid surface is a plane surface. But in other cases there is a curving in the surfaces, और वो आपका ग्लास और वाटर के केस में that will be the concave. In case of mercury and glass it will be the convex. So this is about the meniscus. Which types of meniscus is formed in which cases. Then हम बात करेंगे कि जो meniscus आपका फॉर्म हुआ है, इट्स क्लियर. तो एक चीज और हम बात कर ले रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. चलिए, दिस इज क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ meniscus. नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो व्हाट इज दिस, लेट अस सी. चलिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके. This is about meniscus. Which types of meniscus is formed in which cases? Now we see what is the meaning of angle of contact. का मतलब क्या है? Angle of contact का मतलब होता है जो भी आपका curved surface है. Clear? Here is the concave curved surface and here is the convex curved surface. So you have to draw the tangent on that surface. आपने ये tangent draw किया. In this case यहां पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, दिस इज द टेंजेंट. यहां पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो दिस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. ये तो टेंजेंट. तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन ईच सरफेसेस ड्रा किया आपने. देन द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड द सॉलिड सरफेस विच इज इनसाइड द लिक्विड. एक सॉलिड सरफेस ये भी है. We have also this angle. ये भी एंगल है this tangent और this solid surface के बीच में. But we are not talking about that. We are talking about that surface which are in liquid. तो liquid में कौन सा solid का surface है, ये है. That's why this angle theta is known as angle of contact. In this case अगर हम बात करें तो this tangent और solid surface के बीच, मतलब ये थीटा होगा. ये वाला थीटा नहीं, बिकॉज दिस सरफेस इज नॉट इनसाइड द लिक्विड. वो सॉलिड सरफेस, वेसल का वो सरफेस विच इज इनसाइड द लिक्विड दैट मेक्स विथ द टेंजेंट ऑन द सरफेस इज नोन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. यहां पे भी टेंजेंट क्या होगा, ये वाला हम लेंगे, दिस विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो क्लियर, यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी द 90 डिग्री और वो कैसे डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट. This means कि the angle between the tangent on the curved surface and the solid surface inside the liquid. तो इसको लिख लेते हैं एक बार कि the angle of contact is the angle theta. The angle of contact, इसको लिख लेते हैं angle of contact theta is the angle किसके किसके बीच में, बिटवीन एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस और किसके बीच में, and the solid surface, liquid surface at the point of contact
at the point of contact to the solid surface inside the liquid. This is the definition of the angle of contact. अब अच्छे समझ लीजिएगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द, और टेंजेंट कहां पे, ऑन द कर्व सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इधर तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, यहां भी बना सकते हैं. तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा कांटेक्ट, जहां पे आपका लिक्विड और सॉलिड सरफेस मीट कर रहा है. तो वहां पे जो आप टेंजेंट ड्रा करेंगे ऑन द कर्व सरफेस, वो और सॉलिड सरफेस विच आर इनसाइड द लिक्विड जो भी एंगल बनाएगा, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. अब वो अगर हम बात करें इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास, क्या होगा, द लिक्विड फॉर विच, स्पेशली लिक्विड which have concave meniscus, तो क्या होगा, थीटा इज क्या होगा, एक्यूट एंगल. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास लिक्विड का जो मेनिस्कस है, इफ दैट इज कर्व, तो जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा दैट विल बी द एक्यूट एंगल. और एग्जांपल अगर हम देखें तो ग्लास और वाटर के केस में यू कैन सी दैट दिस थीटा इज ऑलवेज एक्यूट. एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री. तो दिस इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. और अगर ये एक्यूट एंगल्स होता है इन केस ऑफ ए कनकेव मेनिस्कस आर फॉर दैट लिक्विड विच वेट द सॉलिड, या वो लिक्विड जिनके लिए एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से. इट्स क्लियर कि ऑल द केसेस if adhesive force is more than the cohesive force, or liquid weights the solid, or the angle, the shape, meniscus shape is concave, then theta will be the acute. और in case of a water and glass अगर हम बात करें तो its value is approximately coming 8 degree. ये 8 डिग्री होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट किस केसेस में, वाटर और ग्लास के केसेस में. तो ये आपका इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास, फॉर वाटर, लिक्विड एंड ग्लास सरफेस के केसेस में. ठीक, इसका अपोजिट इसमें अगर हम आते हैं तो लिक्विड विच हैव कन्वेक्स, इन केस ऑफ फॉर कन्वेक्स मेनिस्कस, थीटा क्या होता है, ऑब्टूस. थीटा ऑब्टूस ये कब होगा, इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स, या ऐसे लिक्विड जो सॉलिड को वेट नहीं करते हैं, भिगोते नहीं है. इन दैट केस जो सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी द ऑब्टूस. और इन केस ऑफ मरकरी एंड ग्लास अगर देखें, मरकरी और ग्लास के लिए, मरकरी एंड ग्लास अगर सरफेस की बात करें तो इट्स कमिंग 138 डिग्री, विच इज मोर देन 90 डिग्री. तो इसलिए क्या होता है, ऑब्टूस एंगल लेते हैं. और फॉर दैट लिक्विड अगर प्लेन सरफेसेस है, फॉर प्लेन सरफेस, अगर लिक्विड का प्लेन सरफेस है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. यू कैन सी द फिगर 3. ये आपका फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी में थीटा विल बी द 90 डिग्री. ये कब होता है, आपका सिल्वर वेसल में, सिल्वर सरफेस हो, जो सॉलिड आपका है वो सिल्वर हो, एंड क्लीन वाटर के केस में, क्लीन वाटर हो. तो इन दिस केस द नेचर ऑफ द सरफेस इज 90 डिग्री. जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो आपका 90 डिग्री होता है. इट्स क्लियर. तो ये तो हमने देख लिया. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट on what factor the angle of contact depends, वो हमें जानना चाहिए, that is very important. उसको भी हम समझ लेते हैं. तो from this figure you can also see that कि अगर देखिए हमने क्या किया, ग्लास और वाटर लिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका एक्यूट आया,
जब हमने ग्लास और मर्क्यूरी ले लिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका ऑब्टूज हो गया। हमने वेसल बदल दिया, सिल्वर और वाटर लिया तो दिस बिकम 90 डिग्री। तो दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ द सॉलिड इन विच ये सॉलिड वेसल्स, क्लियर। इट डिपेंड्स अपॉन द cleanliness of the solid surfaces. It depends upon the temperature, and it also depends what medium are there above the free surfaces of the liquid. सरफेस के ऊपर कौन सा मीडियम है उस पे भी आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। यू हैव टू कॉपी दैट। इसको भी आप लिख लीजिएगा कि ऑन व्हाट फैक्टर द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स। यू ऑल हैव टू, वीडियो का पॉज करके यू ऑल हैव टू मेक ए नोट्स। आपको सब ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। फैक्टर ऑन व्हाट दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स। चलिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। फैक्टर्स ऑन व्हाट फैक्टर्स angle of contact depends on किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड, कौन सा है लिक्विड है और कौन सा सॉलिड है इन कांटेक्ट। फर्स्ट फैक्टर किस किस पे डिपेंड करेगा? हम किस सॉलिड वेसल को हमने लिया है और कौन सा लिक्विड लिया है विच आर इन कांटेक्ट। सेकेंड फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लीननेस ऑफ द cleanliness of the solid surface in contact। ये फैक्टर ये हो गया सरफेस इन कांटेक्ट। थर्ड फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम above the free surface of the liquid। लिक्विड के ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर है, कौन सा दूसरा मीडियम है, and depends on that। And this fourth depends on the temperature of the liquid। These are the four factors on which angle of contact depends। किस किस पे? आपके सॉलिड और लिक्विड का जो कांटेक्ट है वो कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द क्लीननेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एवर द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड।